So we have derived the formula of rate constant of zero order reaction, that is K is equal to A minus A divided by T, as is the rate constant of zero order reaction एंड देन उसके बाद हमने डिराइव किया था टी हाफ का फॉर्मूला. टी हाफ मींस व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन when initial A naught initial concentration when A becomes A naught by 2 means the initial concentration decrease to its half amount. That particular time is known as T half. So for that T half is equal to A naught minus half A naught. Here we have replaced, हमने A की जगह पर हाफ A naught लिखा है क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हाफ हो गई है और अब जो बची है उतनी कंसंट्रेशन है A naught मींस हाफ A naught मींस हाफ A naught divided by K divided by K divided by K, then T half is equal to A naught by 2K. So this is the formula for T half of zero order reaction. Okay, zero order reaction means there are zero at the power of concentration of reactants. Here rate is equal to K A naught, A to the power 0 means this is zero order reaction. Therefore the formula for rate constant K is equal to A naught minus A concentration of initial concentration by T, and for T half it's A naught by 2K. Okay, अब हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं A naught by 2K. Thus we can say that हम कह सकते हैं कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ है वो प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर. ओके, जो टी हाफ का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ है वो डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे. ओके, thus the half life of period of zero order reaction depends upon the initial concentration of A naught reactant, that is A naught, and from the above reaction we can say that T half is directly proportional to A naught, means directly proportional to the initial concentration of reactants. Okay, the T half, the half life means T half period is directly proportional to the initial concentration of reactant. For example, let's take an example. एक example हम solve करने जा रहे हैं in which the rate constant of zero order reaction is 2.4 into 10 raised to power minus 3. Means rate constant means K is equal to 2.4 into 10 raised to power minus 3 mole liter in a second inverse, which is the unit of zero order reaction. What would be the half life of reaction if the initial concentration of reactant is 1.2 into 10 raised to power minus 2 mole liter inverse. Okay, everything is clear, सब कुछ दिया गया है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. T half is equal to A naught by 2K. Therefore, what is A naught? A naught is 1.2 into 10 raised to power minus 2 divided by 2K. 2 into what is K? Rate constant 2.4 into 10 raised to power minus 3. Okay, into 10 raised to power minus 3. अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 2 होगा. ओके, ना ये पर है 10 टू पावर माइनस 2, नीचे 4 into 10 4
नीचे है 4 और ऊपर गया 10 स्क्वायर प्लस 3, तो -2 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 1। ओके, तो ऊपर है 10 एंड डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 4 हमारा आया 2.5। ओके, 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5। क्लियर? एग्जाम्पल समझ आया सबको? ओके, जस्ट वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में विथ सम लॉजिक एंड डिटर्मिनेशन। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तब फर्स्ट ऑर्डर का था रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1। ओके, तो व्हाट इज द व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ रेट माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के ए। ओके, के ये हम लिख सकते हैं जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेट वेयर k1 इज रेट कांस्टेंट। ओके, वेयर k1 इज रेट कांस्टेंट। अब हम उसे रीअरेंज करेंगे। जब हम उसे रीअरेंज करेंगे तब हमारा ऐसा था माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए नॉट ए टू पावर 1 ऐसा था। अब हम उसने लिखा कि माइनस डी ए, इसको हमने डिवाइड में लाया और इसको मल्टीप्लिकेशन में ले गए, डिवाइडेड बाय ए। ओके, इज इक्वल टू के डी टी इज इक्वल टू के डी टी। जस्ट ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था और ये यहाँ पर डिवाइड में था, दोनों की प्लेस एक्सचेंज की। जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें मिलेगा नेचुरल लॉग में माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, हमें मिलेगा के टी प्लस कॉन्स्टेंट। There's no need to by heart the whole derivation. We had just to remember the formulas, which is more important, or that's just important. Where the constant can be determined from the initial concentration, let A not be the concentration of A at time t, and at the beginning of the reaction, the ln minus A is equal to ln minus ln A naught. When t is equal to 0, initial concentration will be full, that a maximum. Initial concentration will be maximum. Okay, so putting the value now, initial concentration is maximum, therefore we can say that the constant is equal to initial concentration is maximum, therefore it's constant. Okay, because there is no reaction is further proceeding, therefore initial concentration we can take as initial concentration constant. Now putting the value of constant in equation, we got that minus A is equal to minus KT minus log natural log A. Now by integration we got the formula that k is equal to 1 minus t ln A naught by A. Okay, A naught by A, where A naught is initial concentration and A is remaining concentration. Okay, now whenever जब भी हम नेचुरल लॉग की बात करते हैं तब हमें उसका बेस चेंज करना होता है, जो कि लॉग का 10th बेस जिसकी हमारी वैल्यूज होती है, जो लॉग टेबल होता है उसमें सब बेस 10 की वैल्यू होती है। इसके लिए अगर नेचुरल लॉग को 10 के बेस में चेंज करना है तो हम नेचुरल लॉग को इनटू 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी वैल्यू नेचुरल लॉग से कन्वर्ट होकर लॉग 10 बेस में चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये इक्वेशन को जब नेचुरल लॉग में था तब हम उसे अब 10 के बेस में चेंज करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा k1 is equal to 2.303 by t। जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करना है log A naught by A। ओके, ये हुआ हमारा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हुआ हमारा फॉर्मूला
फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। ओके, नाउ फर्दर पुटिंग व्हेन टाइम इज इक्वल टू t एंड अगेन द मेकिंग द ग्राफ। अब वैल्यू पुट करके ग्राफ फॉर्म किया जिसमें स्लोप की वैल्यू आई -k1/2.303। डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर द ग्राफ फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ। ओके, और जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ की, तब हमें फॉर्मूला मिलता है T half equal to 0.693 by K। ओके, तब हमें मिलता है 2.3 T half equal to 0.693 divided by K। ओके, दिस फॉर्मूला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो कि तुमको याद रखना ही है। ओके, दिस फॉर्मूला, this graph, this complete graph, then this formula and same for zero order reaction, same zero order reaction के भी T half का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखना है। अब इसके एग्जांपल्स हम थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर टू फॉर्म टू वाटर एंड ऑक्सीजन। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर H पेरोक्साइड गिव्स 2H2O प्लस O2। ये हमारी रिएक्शन हो गई। इसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है 0.0410। ये हुई हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू, मींस k की वैल्यू हमने दी। इफ वी स्टार्ट विद 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2O2, यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हमें 0.20 मोलर। What will the concentration after 10 minutes? Okay, after 10 minutes means after time t concentration कितनी बचेगी H2O के मींस पेरोक्साइड की। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था K is equal to 2.303 divided by T log A0 by A। ओके, तो A हमारा है आफ्टर 10 मिनट्स क्या कंसंट्रेशन होगी, A0 है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, T है हमारा आफ्टर हाउ मच टाइम मींस 10, वैल्यू 10, और K की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है, मींस A0 की वैल्यू दी है, T की वैल्यू दी है, K की वैल्यू दी है, सिर्फ हमें फाइंड करनी है A की वैल्यू। ओके, A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जस्ट बाय पुटिंग वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पर 0.14 जो वैल्यू दी गई थी वो 2.303 by 10 is equal log 120 by x। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व दिस। हमें 0.0410 k की वैल्यू दी गई। ओके, t is equal to 10 एंड इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.20। ओके, तो फॉर्मूला हम क्या होगा, फॉर्मूला हमारा k is equal to 2.303 divided by t log A0 by A। ओके, तो यहाँ पर t यहाँ चला जाएगा, k नीचे आ जाएगा। ओके, तो t ऐसे हम चेंज करके फायदा नहीं है, हमें a फाइंड करना है। ओके, हमें a फाइंड करना है, तो एक इक्वेशन बना देता है। AT is equal to 2.303 log A0 by A। ओके, log A0 by A 0.2। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। k into t क्या होगा, हमारा k है 0.410
इंटू टी, टाइम है इंटू 10, तो ये यहाँ पर शिफ्ट आ जाएगा, तो 4.10 हमारा हुआ 4.10 हुआ। इन लोगों ने कैसे किया है, log इज इक्वल टू में लिया और ओके log इज इक्वल टू में लिया इन लोगों ने और यहाँ पर सॉल्व किया है। तो टेकिंग log इनिशियल कंसंट्रेशन था हमारा 0.20 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू t इंटू k डिवाइडेड बाय 2.303 ओके। इक्वेशन को सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, अब हम k और t को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिलता है 4.10 डिवाइडेड बाय 2.303, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तब होगा 0.179 मींस 8 ओके 0.179 या 8 आएगा ओके 0.179 या 8 आएगा 178 ले लेते हैं। अब आया हमारे पास log 0.20 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0.178 नाउ इज इक्वल टू के साइड log है और इस साइड आएगा तो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, मींस 0.20 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.178। अपनी लॉग बुक खोलिए और इसका एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू आती है 1.51 ओके 1.51, तो 0.20 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1.51, तो 0.20 डिवाइडेड बाय 1.51 इज इक्वल टू x। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास आएगा 0.132 मोल लीटर इनवर्स ओके मोल लीटर इनवर्स। तो 10 मिनट के बाद इतनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचेगा जो कि अभी रिएक्ट नहीं हुआ। क्लियर, सिर्फ फॉर्मूला के बेस पर पूरा चैप्टर है, ऐसे ही सॉल्व करोगे जितने ज्यादा क्वेश्चंस उतने ज्यादा ग्रिप आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 4.12, इफ वी स्टार्ट विद इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.50, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है हमारा 0.50, how long it takes to concentration drops to 0.10, A is equal to 0.10, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.50 और पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा जब तक उसकी कंसंट्रेशन 0.10 ना हो जाए ओके 0.10 ना हो जाए। तो हमारे पास फॉर्मूला है ये k is equal to 2.303 by t log a naught by a ओके और रेट कांस्टेंट भी दिया होगा। we have to find time taken by the reaction starting from concentration of 0.5 molar to 0.1 मोलर। अब वो ऊपर जो एग्जांपल था उसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी 0.05 राइट, ऊपर जो वैल्यू हमने सॉल्व किया उसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी 0.04 सॉरी, तो यहाँ पर वो 0.04 डिवाइडेड बाय 2.303 t हमें फाइंड करना है log a naught 0.50 डिवाइडेड बाय 0.10, तो सिंपली यहाँ पर होगा log 5 की वैल्यू होगी लेट्स से बाद में देखेंगे 0.04 इज इक्वल टू अब हम t को इज इक्वल टू में लाते क्योंकि हमें t फाइंड करना है, तो t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.04 log 5 जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2.303 डिवाइडेड बाय 0.04 2.303 डिवाइडेड बाय 0.04 मींस नीचे 3 0 और ऊपर 2 0 23030 डिवाइडेड बाय 4000 means 2303 divided by 40 तो 40 divided by 2303 45 200 33 8 5 8 for that 32 sorry 7 28 7 280
280 57 280 यहाँ पर 303 माइनस 280 मीन्स 20 एंड 3 23 230 235 5 575 230 पॉइंट ओके 2303 575 पॉइंट समथिंग आएगा ओके 575 पॉइंट समथिंग। तो जब हम इसे डिवाइड तो नहीं किए इन लोगों ने डिवाइड नहीं किया 2.30 डिवाइड बाय 0.401 तो यहाँ पर सीधी लॉग की वैल्यू उन लोगों ने पुट की 0.699 और लास्ट में कैलकुलेशन करके टाइम फाइंड किया 39 मिनट्स ओके कैलकुलेशन करके टाइम फाइंड किया 39 मिनट्स। इसी के जैसे सभी फॉर्मूला में पुट करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है जस्ट बाय सिंपल कैलकुलेशंस। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर हाफ लाइफ। In example 4.2, how long it take for a sample to decompose to 50%? Okay? ऐसा कहा गया है 4.2 में जो एग्जाम्पल था हमारा 4.2 एग्जाम्पल 4.2 इसमें 50% कंसंट्रेशन होने में कितना टाइम लगेगा। 50% कंसंट्रेशन यानी क्या, जब इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए उसे बोलेंगे 50% कंसंट्रेशन ओके। तो हमें टी हाफ फाइंड करना है, इनडायरेक्टली कहा गया है लेकिन हमें टी हाफ फाइंड करना है। टी हाफ का फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 0.693 by k मींस 0.693 by 0.04। तो इसको हम सॉल्व करेंगे हमें 16.9 मिनट्स हुआ हमारा टी हाफ मींस 16.9 मिनट्स के बाद जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो रिड्यूस होके एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा ओके। Yes, there are some in-text questions. Let's go through once. The rate at certain A and being a product बन रहे हैं उसका रेट है 1.0 into 10⁻³ mole liter when concentration A is equal to 0.01. What is rate constant of reaction? अब A है, A प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और उसका रेट है हमारा 1.0 into 10⁻³ और इनिशियल कंसंट्रेशन 0.020 मोलर। तो उसका K क्या होगा मींस अब हम ये यहाँ पर लेंगे रेट इज इक्वल टू K A to the power x। अब A क्या है तो रेट डिवाइडेड बाय K जब हम करेंगे तो रेट है हमारा 1.0 रेट है हमारा 1.0 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.02 मोलर हमें देगा A to the power x ओके। देखते हैं हम क्या है अब 10⁻³ तो 1 into 10⁻³ divided by 2 into 10⁻² तो -3 -2 1 तो ऊपर हुआ 10 5 ओके 10 तो ऊपर हुआ 10⁻³ डिवाइडेड बाय यहाँ पर -2 है -2 तो -3 -2 तो -3 + 2 -+ आंसर -1 ओके -1 डिवाइडेड बाय 1 divided by 2 in 1 divided by into नीचे रहा बाकी 2 ओके मींस माइनस तो -1 तो ओके नीचे आया तो +1 तो 1 divided by 20 1 divided by 20 so 20 divided by 1 0.005 तो 0.05 is equal to A to the power
x a to the power x, तो ओके 2 1 2, तो 5 into plus 10 minus 2 is equal to a to the power x, तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमें रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। ओके, इफ द रिएक्शन इज ए फर्स्ट ऑर्डर, तो हम बेसिक सब हमने क्लियर कर लिया। अब सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके फाइंड करना है। हमें के ढूंढना है मींस हमारा ये होगा कि k इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन 0। ओके, तो जब कंसंट्रेशन 0 होगा मींस a टू द पावर 0 मींस कंप्लीट 0, तब k की वैल्यू रेट के बराबर होगी। k की वैल्यू तो 0 ऑर्डर के लिए k की वैल्यू रेट के इक्वल होगी 1 × 10⁻³ और जब फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे हम, फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1.0 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.02 जो हमें मिला था 0.05 समथिंग, तो यहाँ पर होगा 0.05। अब यहाँ पर 0 ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और यहाँ पर सेकंड इनवर्स। ओके, तो ऐसे फॉर्मूला में पुट करके फाइंड कर। फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा C2H4 plus I2 gives C2H4I2। This reaction is like this। उसके रेट का एक्सप्रेशन इस तरह है। What is the order of reaction with respect to each reactant? ओके, तो जब हम बात करते हैं C2H4 के रिस्पेक्ट में तो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। जब हम बात करेंगे I2 के रिस्पेक्ट में तो उसके लिए ऑर्डर 3/2 होगा। ओके, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ओवरऑल रिएक्शन होगा 1, यहाँ पर 1 है, 1 plus 3/2 1/1 plus 3/2 just by simple cross multiplying 2 plus 3 divided by 2 is equal to 5/2। ओके, 5/2 हुआ हमारा ओवरऑल रेट। what is unit of K if concentration are measured in mole? What is unit of K if concentration measured in mole decimeter cube? Just 1.0 नेगेटिव साइड हो जाएगा, बस वही डिफरेंस होगा और कुछ नहीं होगा। The first order rate constant for decomposition of C2H5Cl at 700 Kelvin is 2.5 × 10⁻³ तो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट हमें K दिया गया जो कि है 2.5 × 10⁻³ एंड इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है हमारा 0.01। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड for the concentration of C2H5Cl to drop to half of its original value। मींस यहाँ पर हमें हाफ लाइफ फाइंड करना है और कहा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन के, क्योंकि उनके उसके फॉर्मूला में ए कहीं भी नहीं है, इसके वजह से वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है और यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.693 डिवाइडेड बाय k 2.5 × 10⁻³ की हेल्प से हमें t यहाँ मिल जाएगा। ओके, सॉल्व कर दो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिजन थियरी ऑफ रिएक्शन रेट। जैसे कि हमने पहले कहा था कि मॉलिक्यूल्स कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोलिजन करता है, तभी जाके प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो उसके बेस पर एक थियरी बनाई गई है कोलिजन थियरी, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। कोलिजन थियरी वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द रेट्स ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन गैस फेज, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत फ्री स्टेट में होते हैं और वो इंटरेक्शन अदर टू के डिपेंड में बहुत ज्यादा करता है। ओके, इट इज लार्जली बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस बिकॉज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ये कहती है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट मींस एक ये मॉलिक्यूल है तो वो वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पर जब भी
उसे एनर्जी दे या ना दे, वो रैंडमली कहीं भी घूमते हैं, रैंडमली ब्राउनियन मोशन में कहीं भी